tube. Okay, and today we are going to see what is Vastra Dhoti. Vastra, in the name itself, you can find the practice. Vastra is cloth. Okay, so that cloth, how it should be and how it should be inserted or how it is swallowed, we will see the theory practice. So you have to use here the muslin cloth, cotton cloth. आपल्याला मराठीत म्हणतात धोतर आहे ना, धोतराचं सॉफ्ट किती सॉफ्ट असतं. धोतर आपको पता है मिस्टर कुमार, जो हम पूजा के वक्त to 6 centimeters width का क्लॉथ चाहिए, 7 meters का लॉन्ग क्लॉथ चाहिए, ये चाहिए ऐसे पट्टी टाइप. ओके, इट शुड बी डिप्ड इन वाटर. कोई लोग उसे दूध में भी डिप करके रखते हैं. Those who are practicing will keep dipped in water or milk also. Okay? और फिर बाद में वो एक बाउल में रखना है टेबल पे. एंड देन दिस प्रैक्टिस शुड बी डन इन ताड़ासना पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन. ताड़ासना दैट इज स्टैंडिंग पोजीशन में आपको वो धीरे धीरे कपड़ा खा के उसको स्वेलो करना होता है. प्रीति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई एकदम से. So what you have to do, catch one end of the cloth with both hands and start swallowing slowly with deep awareness and ease. Drink sips of water along with the cloth if it does not move on smoothly. अभी होता है ना ऐसा, कभी कभी देखिए कुछ हम लोग अगर अलग खाते हैं या हार्ड खाना लगते हैं और जैसे लगता है कि वो swallow नहीं हो रहा है कुछ चीज, तो हम बीच में पानी पीते हैं to push it downward, है ना. तो ऐसे ही हमें क्लॉथ पे करना, हमें धीरे धीरे पहले ऐसे ही स्टार्ट करना है डालना एंड स्टार्ट swallowing. But if it is not happening, you should use little sips of water to make it go further down. Okay, make sure that about 20-25 centimeters of the cloth is left out towards the end. 20-25 सेंटीमीटर तक का कपड़ा आपका बाहर लेना चाहिए. आप 7 to 10 meters लॉन्ग लेना है, उसमें से 20-25 सेंटीमीटर हमें बाहर रखना है. आफ्टर कंप्लीटिंग वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, टर्न द एब्डोमेन बाय मूवमेंट और अग्निसार. अग्निसार क्रिया हम आगे देखने वाले कैसी है, क्या है. तो उससे हमें उस क्लॉथ को जो अंदर पहुंच गया है उसको चर्न करना है. चर्न करने के लिए अग्निसार मूवमेंट होती है, दैट इज द फ्लैपिंग ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स. एंड ऑल्सो देयर इज नौली क्रिया व्हिच वी विल सी फर्दर. ऐसे करके उसे चर्न करना है. देन लीन फॉरवर्ड एंड स्टार्ट पुलिंग आउट द क्लॉथ स्लोली विद ईज एंड रिलैक्स. देन आपको फॉरवर्ड बेंड करना है एंड देन slowly start pulling it out in the same way. Okay, if the cloth is not coming out easily, wait, take a deep breath and relax, drink few sips of water and then continue. Okay, अगर आराम से बाहर नहीं निकल रहा है cloth भी, तो you have to make sure that your mind is relaxed. Allow your mind to relax and focus. Drink again sips of water and then start taking it out. Okay, this is one practice. Do you want to practice this? You want to try?
basti. Then Thursday we will practice Laku Shanka Prakshalan, or Laku Shanka Prakshalan can be practiced Saturday or Sunday so that you can take rest if you are not working on that day. Then in one day we will try to practice this Vastra Dhoti. You can keep ready the Muslim cloth about 7 to 10 meters long and 5 to 6 centimeters width cloth. Then we will see how it happens. Okay. Do the practice under supervision of a guide. This practice should be done under supervision. During the last few instructions about Kriya, what I told you when as a yoga teacher, what you have to do when you are introducing Kriyas to your clients, to your participants, first month you should ask them to do under your guidance. Right? Every week we should perform Kriyas and you should ask them to do under your guidance. Then from the second month, if they are confident, then you can allow them to practice at their home. But then they have to give the follow-up. उन्होंने आपको follow-up देना है. As a yoga teacher, you should ask them that if you are practicing by your own, you need to give me follow-up about that particular kriya and the practice which you practice that day. ठीक है, इतना ध्यान रहेगा as a yoga teacher. Then never pull heavily on the cloth as the food tube esophagus may go into spasm and make the procedure very strenuous. Okay, आपको जो क्लॉथ पुल करना है, बाहर निकालना है, उस समय हेवीली नहीं निकालना है, फास्ट. You should take out very slowly because you may get the spasm of esophagus. So that time you have to do it very slowly, otherwise it will be strenuous for you. This precaution you have to take. These are the two precautions which you need to take. One is you have to do under the guidance, under the guide. Second, you need to pull out the cloth very slowly. Okay. Now the next comes is nauli. Nauli is all about the recti abdominal muscles movement. Okay. Frontal side ला जे muscles आहेत त्याला पेट के आगे वाली, नाभि के बाजू वाली जो होती है उसे रेक्टाई मसल्स कहते हैं. उसकी मूवमेंट इज नौली क्रिया. नौली इज एन एब्डोमिनल क्रिया with isolated contraction and rolling manipulation of the abdominal recti muscles which form the front linear wall of the abdominal cavity are accomplished. ठीक है, अभी इसके लिए नौली क्रिया के लिए है प्रिपरेशंस. प्रिपरेशंस दो प्रकार के हैं, उडियान बंध एंड अग्निसार क्रिया. अब उडियान बंध कैसे करते हैं? उडियान बंधा यू शुड डू इट. उडियान बंधा इज बेसिकली द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर एब्डोमिनल मसल्स, कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स. तो अभी कैसे करते हैं उडियान बंधा? इट शुड प्रैक्टिस इन स्टैंडिंग पोजिशन. वी विल प्रैक्टिस टुडे. स्थिति इज ताड़ासन. स्थिति इज ताड़ासन. अब पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेप्स, देन वी विल प्रैक्टिस उडियान बंधा. Total there are 3 bandhas in the body. Bandhas are locks. Bandha theory we will take it separately. But just I am giving introduction what are bandhas. Bandhas are locks which helps to lock the energy and divert the energy in the body. This is a simple definition. But we will see the proper book की जो definition है वो हम देखेंगे बाद. Okay, there are 3 bandhas. कितने बंध हैं? Total वैसे 4 है, but the main are 3. Which one? Jalandhar. Jalandhar is throat lock. Jalandhar is throat lock. Then उडियान जो अभी हम देखने वाले हैं वो है एब्डोमिनल लॉक. मूलबंधा is anus lock.
When we perform these three bandhas together all together at one time, that is Mahabandha. Okay, this is basic. Jalandhar Bandha is throat lock. Second, Udiyan Bandha is abdominal contraction. अभी कैसे करते हैं? Practice stand with legs 2 to 3 apart, 2 to 3 feet apart. Bend forward from the waist. Raise the palms of the thighs. Okay. Make yourself comfortable. I'll tell you how we are going to do that. Then exhale completely through the mouth by vigorously contracting the abdominal muscles. Simultaneously press the hands against the thighs, tighten the arms, shoulders, neck muscles and lift up the ribs. It is very simple bandha. As a result of this, the diaphragm automatically rises up, producing a concave depression of the abdomen. Abdominal wall gets sucked in as if to press the spine. देखिए अभी यहाँ पे इतना हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है कि एज इफ योर एब्डोमिनल मसल्स फ्रंट हमारा स्टमक इज प्रेसिंग योर स्पाइन. इतनी कोशिश करना है एज इफ इट इज प्रेसिंग अवर spine. Hold this condition as long as comfortable. Then inhaling slowly, release the abdominal muscles and return to the upright position. Rest for a while and then go for the next round. Okay? हमें क्या करना है? 2 से 3 फीट पैरों में अंतर लेना है. फिर आपको फॉरवर्ड बेंड करना है और हाथों को आपके नीज पे रखना है. उसके बाद you have to blow out completely through the mouth vigorously like this. Completely you have to blow out. Then suck your abdominal muscles inside. पूरा contract करना है. इतना contract करना है कि as if it is pressing the spine. And that time automatically अब हम करके देखेंगे. उस समय क्या होता है जब हम पेट अंदर खींचते हैं ऑटोमेटिकली सी और नेक मसल्स गेट अपर आर्म्स गेट टाइटन, योर आर्म्स गेट टाइटन, ऑटोमेटिकली वो हो जाता है. ओके, तो ये है उडियान बंद का क्रिया का प्रैक्टिस. उडियान बंद का प्रैक्टिस अभी करेंगे हम लोग. कम टू स्टैंडिंग पोजीशन. Standing position. Take distance 2 to 3 meter, 2 to 3 feet apart. दोनों पैर में कंधों से ज्यादा अंतर होगा यहाँ पे, है ना? कंधों से थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं करना. ऐसा जैसे त्रिकोणासन में करते वैसा नहीं. Just little bit away from your shoulder line. Now bend forward like this. Bend forward like this. एकदम फॉरवर्ड बेंड इतना भी नहीं करना है जैसे हम पादहस्तासन में करते हैं. इतना भी फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, हमें इतना फॉरवर्ड बेंड करना है. Then you have to place your palms on your knees like this. हो गया? रख दिया हाथों को इस प्रकार. अभी inhale. Hold as much as you can hold. When you feel that you need a new breath, release the bandha and take a deep breath again. Exhale again and contract your abdominal muscles. पूरा जितना आप अंदर ले सकते हैं abdominal muscles को उतना अंदर लेना है. फिर सांस रोक के रखना है. It is C. यहाँ पे क्या हो रहा है? सांस छोड़ने के बाद होल्डिंग हो रहा है. मतलब कौन सा कुंभक है ये?
बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक, करेक्ट। बाह्य कुंभक हो रहा है यहाँ पे। हमने कुंभक को देखा था, टाइप्स ऑफ कुंभक। मिस्टर कुमार आप थोड़ा नीचे झुकेंगे बैक से। हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा आपको कॉन्ट्रैक्ट करके अपवर्ड डायरेक्शन में खींचना है, एज इफ यू आर इवन प्रेसिंग द रिब्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हमें पूरा रिब्स ही बाहर दिखता है उस समय, पेट का पोर्शन पूरा अंदर खींचा जाता है और रिब्स पूरी बाहर आती है, बिकॉज डायफ्राम मसल ऊपर जाती है। एनी डाउट? टोटल 5 राउंड्स यू हैव टू डू। कितने राउंड हो गए अभी? 3 राउंड हुए शायद, 3। हाँ, और 2 करेंगे। You have to press your neck chin also. Tighten your neck muscles, tighten your arms and contract your abdominal muscles. Do not sit, be in that position only for a while, because उद्यान बंधा का स्टेज 2 आता है अग्निसार क्रिया। Okay? अग्निसार क्रिया is same as उद्यान बंधा, only after उद्यान बंधा we do flapping movements of the abdominal muscles, that is अग्निसार। कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। Move the abdominal wall in and out vigorously like a pump as many times as you can while holding the breath in exhalation. Exhalation में हमने उद्यान बंध को लगाया है ना। Exhalation के बाद वो contraction होने के बाद pump जैसे होता है ना, pumping movement of the muscles, वो हमें करना है। Flapping मैं बताती हूँ। This movement of the abdominal wall is done through mock inhalation and exhalation. It seems as if one is inhaling and exhaling, whereas it is not so. हाँ, inhale exhale ये movement आपके abdominal muscles की दिख रही है, लेकिन ऐसा आपका nostril से नहीं हो रहा है। Getting it? Your Agnisar Kriya practice is happening after exhalation only, but the flapping movement is showing as if you are। अभी आप देखिए, अभी आप सिंपल खड़े हैं ना, अभी आप सिर्फ इनहेलेशन एक्सहेलेशन कीजिए एब्डोमिनल मसल्स से, प्रॉपर नॉस्ट्रल से भी करिए। इनहेल, ऐसा करिए। इसमें आप कर रहे हैं तो आपको एब्डोमिनल मसल फील हो रहा है, बाहर अंदर बाहर अंदर। यस, दैट movement of your abdominal muscles you have to do after exhalation, not using your breathing, only you are using your abdominal muscles. Okay, then stop the movement of the abdominal wall, release the bandha, and while inhaling come up tadasana and relax. Okay, so let's practice how you have to do. You have to again come to the position of उद्यान बंधा। You have to place your palms on your knees. पहले आपको उद्यान बंध लगाना है। कैसे लगाते हैं वो हमने देखा था। इनहेल, and start flapping movement. See, till you feel that you need a new inhalation. Okay, then immediately when you feel that you need a new breath, inhale, stop the practice
इसमें चेन लॉक करना है। हाँ, चिन लॉक करना है। Repeat few times. You can repeat for 5 times. This is Agnisara Kriya. अभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम चिन लॉक करते हैं तो नेक पे थोड़ा प्रेशर आता है। सो मेक श्योर कि अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, नेक का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ज्यादा नेक को ऐसे बेंड नहीं करना है। ओके मिस्टर कुमार, समझ में आया आपको? इट्स अ वेरी इजी प्रैक्टिस, बट इट शुड हैपन करेक्टली। एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन उड़ियान बंद में बराबर हुआ तो आपका अग्निसर क्रिया बराबर होगा। ओके, गॉट द स्टेजेस? उड़ियान बंधन मॅडम पण तेवढ्या रिब्स बाहेर नाही येत जेव्हा प्रॅक्टिस नाही येईल, हळूहळू प्रॅक्टिस नाही येईल, कारण की कसं आहे आपल्याला तेवढं पोट आत खेचून ठेवायची एवढं हे नाहीये ना, प्रैक्टिस नहीं हळूहळू येईल। पर म्हणून शुरुआत में बहुत ज्यादा आपको बर्डन भी नहीं देना है कर रहे हैं तब, है ना, बहुत ज्यादा। यस, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन है उसमें, प्रॉपर बहुत कॉन्ट्रैक्शन है जहां हम प्रेस कर रहे हैं स्पाइन को। तो कभी कभी शुरुआत में बहुत ज्यादा हम करते तो हो सकता है आपको पेट दर्द भी हो, एब्डोमिनल मसल्स में थोड़ा सा सामने पेट पे दुखे भी, बट डू नॉट गेट डिस्टर्ब कि हमें दुख रहा है। इट इज ऐसा हमने कभी यूसेज किया नहीं हमारे एब्डोमिनल मसल्स का, तो चेंजेस हो सकते हैं, बट स्लोली विद प्रैक्टिस इट विल कम। ओके, समझ में आया उड़ियान बंध एंड अग्निसार क्रिया? देन व्हाट आर द बेनिफिट्स? कैन यू टेल मी? जस्ट सोच के बताइए कि एब्डोमिनल का कॉन्ट्रैक्शन है, फ्लैपिंग है, तो इन दोनों का क्या यूसेज हो सकता है? सोच के बताइए। कॉमन सेंस, इंटेस्टाइनचं शुद्धीकरण, स्ट्रेंथ लागणे. वाढेल. गुड, भूख लगनी मतलब मिस्टर कुमार बैठ सकते हैं अभी, आप बैठ जाएंगे। भूख लगना, भूख लगना मतलब क्या होता है? भूख लगना मतलब क्या होता है? ऍसिड जनरेट होते. यस, इट स्टिमुलेट्स योर डाइजेस्टिव फायर और हमारा एपेटाइट ठीक करने के लिए ये मदद करता है। जिनको बद्धकोष्ठता है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन जिसे बोलते हैं, उन लोग के लिए ये बहुत अच्छा है, बिकॉज इट स्टार्ट स्टिमुलेटिंग योर डाइजेस्टिव फायर, इट इम्प्रूव्स द डाइजेशन प्रोसेस एंड इट हेल्प्स इन भूख लगना। होता है ना, किसी किसी को सुबह उठ के भूख नहीं लगती, 12-12 बजे तक कुछ कोई खाता ही नहीं है, दैट इट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, ड्यू टू हैबिट, जैसे हमारी मम्मी लोग हैं या हम लोग देखते हैं कोई कोई घर में सुबह उठने के बाद खाने की आदत ही नहीं रहती है, ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, कोई कोई लेडीज सीधा खाना ही खाते हैं। इट इज नॉट अ गुड हैबिट, that means their indigestion is their digestive fire is low in lower side, they should activate it, so this process is helpful for such people. Okay, then it massages, stimulating the associated nerves, strengthening the muscles, encouraging optimal health of the abdominal organs. हमारे abdominal organs का optimal health हम इस क्रिया से हैं उन्हें। अभी एब्डोमिनल कौन कौन से होते हैं पेट के हिस्से में, बताइए।
Small intestine, large intestine, pancreas, liver. वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। ये सारे जो है लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे हमारे पेट में दिखता है ऐसा। जिनका पेट बड़ा है वो लोग का ठीक है कि इतने बड़े पेट में सब कुछ है, लेकिन पेट बाहर से इतना सा दिखता है, बट इट accommodates so many organs and that are the most important organs for the nutrition for the body, right? So ये practice बंधा and अग्निसार क्रिया helps, it gives abdominal massage into the internal organs, okay, which stimulates the associated nerves and it improves blood circulation to the whole trunk area and strengthens all the internal organs. Improve होता है blood circulation, यहाँ पे local blood circulation. अगर blood circulation improve है तो healing process proper होता है. This is the physiology, right? It improves the health of your organs. Okay? अभी हम लोग अगर देखते हैं कि joint pain, for example, any type of joint pain, if you have wrist pain, when we do sukshma vyayam, what it does, it improves the local blood flow, and as the local blood flow improves there, it reduces pain. In similar manner, when we do the abdominal kriya like this Udiyan Bandha and Agnisan, it improves the flow of blood towards that particular organs, और उसको अगर proper blood flow मिला तो उसका functioning improve होता है. Okay, then it is a for many abdominal and stomach ailments including constipation. अभी मैंने बताया constipation is बद्धकोष्ठता, indigestion, diabetes. Agnisar kriya is one of the best practice for diabetic patients. Agnisar kriya, it stimulates pancreas. Pancreas क्या है? It is a gland which secretes insulin hormone. ठीक है, इंसुलिन, अब डायबिटिक पेशेंट में हम इंसुलिन बाहर से देते हैं ना, इंसुलिन जिनका अनकंट्रोल्ड है शुगर लेवल्स, जो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते विद मेडिकेशन, दे नीड टू टेक इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड. व्हाई? बिकॉज it can be in two ways. One is your pancreas is not at all producing insulin hormone, or your pancreas are producing insulin hormone, but your insulin hormone is so lethargic that it is not reaching to your cells. And when it is not reaching to the cells, it remains in the blood. And that is why your blood glucose levels increases. This is simple. एक diabetic की physiology है, diabetic patients. Diabetes क्या है? Pancreas is a gland which secretes insulin hormone, and this insulin hormone allows glucose to reach cells, so that cells absorbs the glucose or cells takes the glucose for energy. This is normal physiology. But एक ऐसा होता है जैसे टाइप 1 टाइप 2, दो टाइप के डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं. टाइप 1 जिसमें पैनक्रियास सिक्रीट ही नहीं करता इंसुलिन. टाइप 2 जिसमें पैनक्रियास सिक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन,
चीजें हैं, अग्निसार क्रिया, उड्डयन बंद, ये हमारे पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। इंसुलिन को क्या करता है, वो लेथार्जिक है तो उसे उठाता है, जागरूक करता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, समझ में आ रहा है ना? ये प्रैक्टिस इसीलिए डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, अगर हम लोग करते हैं तो हमारे लिए वो प्रिवेंशन है, क्योंकि अभी टाइप 2 डायबिटीज इज वेरी कॉमन नाउ इन इंडिया। इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ कैपिटल फॉर डायबिटीज, ये अभी है। इसलिए लास्ट इन 2015 this stop diabetes movement started. This was a government project, stop diabetes movement with lifestyle modification, and that in that yoga plays a very important role. Okay, now what are other benefits? Digestive fire is stimulated, ये हमने देखा, पहले ही मैंने बताया। It can also elevate depression, dullness and lethargy. डलनेस होता है, लेथार्जी होती है, डिप्रेशन आता है हमें, उसे भी ये एक्टिवेट करता है, बिकॉज द नर्व्स आर एसोसिएटेड। नर्व्स डिप्रेशन का बेसिकली स्पाइनल नर्व्स आर एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल रीजन। ओके, so then it improves the blood flow towards the brain also. So this is how it helps to stimulate our or to elevate depression, dullness and lethargy. मोस्टली हम डलनेस लेथार्जी कब आता है, जब हमारा डाइजेस्टिव फायर लो होता है। आप देखिए, व्हेन आवर डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस इज स्मूथ, दैट टाइम एट फिजिकल लेवल वी फील एनर्जेटिक। देखिए ना, जब हमारा जिस दिन पेट एकदम अच्छे से साफ होता है, हमें कितना हल्का महसूस होता है कि नहीं? मेंटली ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो वी फील वेरी लाइट एंड रिलैक्स। So this kriya help the digestive system, and then it helps us to remove dullness and lethargy. Okay, मॅम पूर्ण बॉडीतनं डलनेस काढतं का? हो, अगदी असं। ओके, तर त्याची रोजची प्रॅक्टिस जर राहिली तर त्याचा प्रॉपर फायदा होईल। रोज करू शकतो, रोज करना है, रोज कर सकते हैं इस क्रिया को। एम्प्टी स्टमक, मेक श्योर यू आर डूइंग इट एम्प्टी स्टमक। इज इट ओके इफ आई ड्रिंक वाटर एंड देन आई डू इट? It is okay, but not immediately. नॉट इमिजिएटली। हाँ, better you do it before and then drink water. Yes, it may be, as we are doing the flapping movement, it may churn the water in your intestines. So it is again good practice to remove or to push the bowel or improve the bowel. That is okay, but immediately if you are drinking, you may feel that your flapping movements are not happening properly. Better you do it empty stomach, and then I can drink water. yes, ओके, म्हणजे कॉन्स्टिपेशन जिनको है उनके लिए भी हम ऐसा उनको बता सकते हैं कि yes, अभी क्रिया करो, उसके बाद में आप पानी पियो। yes. ओके, Okay. Next is Madhyama Nauli, maintaining Udyan Bandha. Give a forward and downward push to the abdominal point, just above the pelvic bone, in the midline where the two recti originates. Pelvic bone नाभि के नीचे है एकदम से, तो हमें क्या करना है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। मध्यम नौली, अब नौली क्रिया जो हम देख रहे थे ना, नौली क्रिया practice in 3 stages, that is दक्षिण नौली, वाम नौली and मध्यम नौली। नौली के कितने प्रकार हैं? 3। नौली क्रिया के 3 प्रकार हैं। नौली क्रिया का प्रिपरेशन क्या है?
उद्यान बंध एंड अग्निसार क्रिया. डोंट गेट कंफ्यूज. नौली क्रिया का प्रिपरेशन है उद्यान बंध एंड अग्निसार. ओके, उद्यान बंध लगा के नौली क्रिया की जाती है. There could be the abdominal contraction, उद्यान बंध in nolli. Then when you push it forward and then downward, वो जो मसल्स हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसे हमें फिर फॉरवर्ड पुश करके डाउनवर्ड प्रेस करना है टुवर्ड्स द पेल्विक बोन. पेल्विक बोन इज बिलो द नेवल. एक बोन होता है ना, वहां की तरफ हमें और रेक्टाइल मसल्स को प्रेस करने हैं. दैट इज मध्यम नौली. मध्यम, दक्षिण एंड वाम तीन है. मध्यम, दक्षिण एंड वाम. तो व्हेन वी प्रेस आवर रेक्टाइल मसल्स डाउनवर्ड, दैट इज मध्यम नौली. देन this push brings about the contraction of these muscles which stand out in the center, leaving the other muscles of the abdominal wall in a relaxed condition. Dakshin, for Dakshin right nauli, one has to contract the right rectus alone, leaving the other muscles including the left rectus muscles relaxed. ये थोड़ा सा ना हार्ड प्रैक्टिस है. You need lot of practice for this. And basically ऐसा है कि even the ladies doesn't practice this more. हमारे जो एक ट्रेडिशन है यहाँ हम देखते हैं तो फीमेल्स ये ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते. मेल इजीली मेल्स कैन प्रैक्टिस बट वी कैन ऑल्सो. ऐसा कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं. बट यू शुड नो द प्रॉपर टेक्निक टू डू इट. तो हमने दक्षिण नौली का क्या देखा कि हम फॉरवर्ड उसको प्रेस कर रहे हैं और फिर डाउनवर्ड उसको फॉरवर्ड करके डाउनवर्ड प्रेस करना. दैट इज द मध्यम नौली. दक्षिण इज योर राइट साइड. हमें उसको मूव करना है या उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है. वामा इज लेफ्ट, सो ओनली लेफ्ट रेक्टस मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड. लेफ्ट साइड का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो वो आपको दिखता है जब मूव करते हैं उसको. रेक्टाइल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जब राइट साइड का होता है, लेफ्ट साइड का होता है, नीचे जाता है तो वो दिखता है. तो नौली कैन बी इन 3 stages: मध्यमा, दक्षिण एंड वाम. आपको करके देखना है जमता है क्या, देखना है आपको. नहीं मॅम एवढं मोठं पोट आहे ना, कसं जमेल. नाही ना. हो, डेफिनेटली थोड़ा त्रास होतो. एब्डोमिनल एरिया जिनका ज्यादा है उनको उतना कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता है. द डीपर कॉन्ट्रैक्शन वी डोंट फील. बट यस यू कैन. हम लोग करेंगे उसका प्रैक्टिस. एक बार हम करके देखते हैं बाद में. ठीक है. उसके बाद है नौली चालन. नौली चालन इज व्हेन वन हैज गेन्ड full control over these 3 types of noli. Rolling of the recti muscle clockwise and anti-clockwise is practiced. So when you get the control over these 3 noli, madhyam, dakshina and vam, right, left and down, ये
इम्प्रूव होता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, गैस्ट्राइटिस जैसे प्रॉब्लम्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जिनको है उनके लिए भी ये क्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। पाइल्स पता है क्या होता है? ये गैस्ट्राइटिस होता है जब, वो भी हम सब डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से। ओके, देन अवॉइड इन केस ऑफ acute ulcers in stomach for 1 year after abdominal surgery. सीवियर बैकेज जिसको है उन्होंने अवॉइड करना चाहिए सीवियर बैकेज। ओके, बिकॉज when we contract abdominal muscles it give pressure on the back muscles also. So those who have severe backache they should avoid it. Okay, then avoid during menstruation. In females when their menstrual cycle is going on, that time they should avoid this kriya. हार्ट डिजीज जिसको है, हाइपरटेंशन जिसको है, उन्होंने अवॉइड करना है। बीपी जिनका बढ़ा हुआ है उन्होंने नहीं करना है। हार्ट डिजीज वालों ने नहीं करना है। अभी जिनकी वीक लंग कैपेसिटी है उन्होंने हमारे अंडर करना है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, वीक लंग कैपेसिटी जनरली हम देखते हैं एस्थमेटिक्स में होती है। So how you will judge that this person has weak lung capacity? That person who is always prone to allergies, or that person who has asthma, ये जो लोग हैं वो लोग लंग कैपेसिटी इनका वीक रहता है। ऐसे लोगों को हमने सुपरविजन में करवाना है। ओके, these are the limitations. Now next kriya comes as लघु शंख प्रक्षालन. लघु शंख प्रक्षालन. Who attended शंख प्रक्षालन? Yes, Mr. Kumar, we have done it practically, right? हमारे क्लास में हमने मॉर्निंग में प्रैक्टिकल इसका किया है। आप लोग में से कोई उस दिन अटेंड नहीं करे थे ना? ठीक, we will definitely repeat practice, तो हमें करना ही है इसका। तो लघु शंख प्रक्षालन एंड पूर्ण शंख प्रक्षालन। व्हाट इज शंख अकॉर्डिंग इन दिस क्रिया? शंख जो दिया है ना नाम, वो हमारे इंटेस्टाइन को दिया है। प्रक्षालन इज क्लींजिंग, शंख इज इंटेस्टाइन, सो इट इज अ इंटेस्टिनल क्लींजिंग। ओके, व्हाट इज द प्रैक्टिस? दैट यू हैव टू ड्रिंक अ ग्लास और 2 of lukewarm saline water and then you have to perform the following practices. कैसा है ये प्रोसेस? हमें टोटल लघु शंख प्रक्षालन, लघु इज शॉर्ट, ओके, लघु इज हाफ, शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं। पूर्ण शंख प्रक्षालन इज कंप्लीट, फुल शंख प्रक्षालन। ये हमें हमारे बुक में सिर्फ लघु शंख प्रक्षालन दिया है। पूर्ण शंख प्रक्षालन हम लोग ने किया हुआ है, वो क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ आपको। लघु शंख प्रक्षालन
Twisting. waist twisting posture. It is also called कटी चक्रासन. ये पोजीशन में हमें ट्विस्ट करना, बैक ट्विस्टिंग. देन फोर्थ स्टेप इज भुजंगासना ट्विस्टिंग. पेट पे लेट के भुजंगासन में आके हमें राइट हील को देखना है, फिर हमें लेफ्ट हील को देखना है. दिस इज ट्विस्टिंग, भुजंगासना ट्विस्टिंग. इसे तिर्यक भुजंगासन भी बोलते हैं. राइट डाउन द नेम एज इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक. तिर्यक भुजंगासन भी इसे कहते हैं. और फिर आता है स्टेप 5 प्रो ट्विस्टिंग. अभी यहाँ पे हमारे एस व्यासा के पैटर्न में फिफ्थ स्टेप ये है प्रो ट्विस्टिंग. लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योगा में प्रोन सुपाइन पोजीशन में एक और क्रिया दी है, कहते हैं लंबार स्ट्रेच उदराकर्षण आसन, जो मैं करवाऊंगी आपको. पीठ पे लेट के पैरों को फोल्ड करके रखते हैं और नीज को राइट साइड झुकाते हैं फ्लोर पे और गर्दन को लेफ्ट साइड. ये भी एक क्रिया उदराकर्षण आसन इसे बोलते हैं. वो बिहार स्कूल ऑफ योगा के बुक में आपको मिलेगी. तो यू शुड नो बोथ द schools technique. One is this pro twisting is SVSS style. Okay, fifth step. बाकी ये सारी स्टेप कॉमन है बिहार स्कूल में भी और यहाँ पे. फिर बिहार स्कूल ऑफ योगा का जो है उसमें लास्ट स्टेप जो है प्रोन पोजीशन में ये बताएंगे. फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ये बताइए बिहार स्कूल में. प्रो ट्विस्टिंग एक्स्ट्रा कब? जब ये सब करने के बाद कुछ अर्थ नहीं आ रहा है, फीलिंग नहीं आ रहा है. अगर मतलब हमारे 8 ग्लास टोटल पानी हमने पी लिया और हर 2 ग्लास के बाद ये आसन कर लिए, उसके बाद भी अगर हमें मोशन का कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है, उस समय ये प्रो ट्विस्टिंग बताया है बिहार स्कूल ऑफ योगा. बट हमारे स्कूल में पहले ही बता दिया है 5 वर्ष. डिफरेंस समझ में आया? So what is the practice? Basically that you have to drink 2 glasses of water, perform these 5 steps, 5 set of asanas, again drink 2 glasses of water, again perform 5 steps, again drink 2 glasses, again 5 asanas, again 2 glasses. ऐसे हमें 6 से 8 ग्लास तक करना है. And then at last you start getting the urge to pass out the stools. फिर वो मोशन का एक हमें आता है और then we completely clean our intestine. और वो कब तक? जब तक पूरा पानी पिया हुआ नहीं निकलता. It is a natural enema. लास्ट टाइम मैंने एनिमा के बारे में बताया था आपको. बस्ती इज लघु शंख प्रक्षालन इन योग. बस्ती जो होती है वो आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी में मैन्युअली दी जाती है. मतलब देयर इज अ एनिमा पॉट, देयर इज अ ट्यूब, देयर इज अ कैथेटर, देयर इज अ नोजल, and that catheter we insert into the anus, then we send or pour the water into the intestine manually. Okay? वाटर होता है या काढ़ा होता है. आयुर्वेदा में काढ़ा यूज करते हैं. नेचुरोपैथी में जनरली प्लेन वाटर, लाइम वाटर, लूकवार्म वाटर ऐसा यूज होता है. ओके. और ऑयल का ऑयल का जो बस्ती है उसे मात्रा बस्ती बोलते हैं. ऑयल बस्ती वी गिव थ्रू द सिरिंज. ओके. यस. असं त्याचा कुछ ml फिक्स होता है, वो सिरिंज का ml, उतना ml ऑयल हम लोग बस्ती के बाद मतलब
सबसे इजीएस्ट मेथड है बस्ती का, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है बस्ती का जो हम घर में ही कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमें ये करना है। उसके बाद हमारा होता है डीआरटी। सारी क्रिया करवा ली हमने हमारे पार्टिसिपेंट से, पार्टिसिपेंट जाके आ गया वॉशरूम, क्लीन होके आ गया, फिर हमें उसको डीआरटी कंपल्सरी देना है। Make sure that you are giving relaxation technique after the लघु शंख प्रक्षालना क्रिया और एनी क्रिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ लघु शंख प्रक्षालन के बाद। वमन धौती की है फिर भी उसे रिलैक्सेशन देना है, जलनेति की है फिर भी रिलैक्सेशन देना है, सूत्र नेति दी है फिर भी रिलैक्सेशन देना है। कोई भी क्रिया करे उसको रिलैक्सेशन देना है, क्योंकि दिस प्रैक्टिसेस क्रिया स्टिमुलेट्स द सिस्टम। So we need to bring back the systems normal so that there is proper recovery and the functioning of organs happens smoothly. ठीक है? Then what is the again वमन धौती के बाद क्या था कि we have to eat boiled khichdi or the plain blend khichdi with ghee, lots of ghee. ध्यान रखिए उस समय आप रोज जितना घी नहीं खाते उससे डबल आपको खाना है। क्यों? मैंने अभी मात्रा बस्ती का आपको बताया, टू रिमूव द ड्राइनेस ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल्स, ल्यूब्रिकेशन हमें जरूरी है। तो उस समय शुद्धि क्रिया होने के बाद हमें खिचड़ी खाना है। ब्रेकफास्ट में मुगाची मूंग की खिचड़ी होती है ना, एकदम सॉफ्ट वाली, वो मूंग की खिचड़ी घी के साथ खाना है। हम लोग हमारे कॉलेज में सिर्फ मूंग की खिचड़ी और घी के लिए क्रिया करते थे बिकॉज दैट वाज इतना टेस्टी रहता था, वो सिंपल रहता था, सात्विक एकदम। लेकिन उसके लिए हम लोग हमारे यूनिवर्सिटी में ज्यादातर क्रिया करते थे और उस समय ब्रेकफास्ट ऐसे करते थे कि डबल डबल लेते थे, क्योंकि घी भी एकदम नेचुरल, वहाँ पे सब एटमॉस्फेयर एकदम सात्विक है ना, गाय है और गाय के प्रॉपर मतलब दूध का घी उस समय हमें मिलता था वहाँ पे, तो हम लोग बस उसी के लिए वेट करते थे। बट यस वी नीड टू हैव, अभी डाइट का अगर हम देखते हैं तो हमें रोज घी खाना है, घी से वजन नहीं बढ़ता है। Ghee is very important for our bones, for the joints, for the lubrication of our intestinal wall. तो हमें घी खाना ही है रोज। ओके, अब खिचड़ी में थोड़ा ज्यादा लेना है जब हम शुद्धि क्रिया कर रहे हैं। It offers complete washout to alimentary canal. एलिमेंट्री कैनल जो है हमारा, उसका प्रॉपर फुल वॉश आउट हो जाता है। मतलब ऐसा होता है कि जब हमारा रोज का मोशन क्लियर होता है उस समय भी हमारे इंटेस्टाइनल वॉल्स को कुछ द्रव्य चिपके रहते हैं, कुछ चीजें चिपकी रहती है। बट विद दिस प्रैक्टिस वो जो इंटेस्टाइनल वॉल को भी चिपका है वो सारा वॉश आउट हो जाता है, because there is a proper churning of water in the intestine with these 5 set of asanas जब हम पानी पीते हैं उसके बाद। ओके, then it keeps health of abdominal organ, removing all is basically one of the detoxifying treatment. आज रिसोर्ट्स में बाहर अगर हम जाते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस जो है बहुत महंगी है, करते हैं लोग। हम लोग भी हमारे सेंटर में अगर डिटॉक्स पैकेज देते हैं 8 days का, तो पीपल स्पेंड मनी बिकॉज दे डोंट वांट टू डू एट होम। दे वांट, मतलब कुछ जन का कैसा रहता है मेंटालिटी कि जाए सब अपना करवा ले और फिर 8 दिन में एकदम प्यूरिफाई होके आ जाए, ऐसा कंसेप्ट वाले भी लोग रहते हैं। बट ऐसा भी हमें मिलते हैं लोग कि वी कैन नॉट स्पेंड दैट मच मनी, सो वी नीड टू गिव दिस ऑप्शन टू देम।
जाने के बाद भी हमें लगता है कि हमें हुआ ही नहीं है, पेट साफ होने के बाद भी हमें लगता है कि अभी और फिर से होगा, दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ओके, सिंपल लैंग्वेज में कि हम जाके आ गए हैं पेट साफ होके, लेकिन हमें बार बार वो फीलिंग आती है कि अरे नहीं अभी फिर से हमें होगा। This irritable bowel syndrome is mostly related to your nervous system, mostly because due to stress it happens. Okay, inflammatory bowel disorder, malabsorption syndrome, dyspepsia, piles etc. very good for adults with diabetic mellitus. जिनको डायबिटीज है एडल्ट्स में, वो लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Inflammatory bowel syndrome is that only कि there is inflammation in the intestinal walls। ये इस प्रकार का जो डाइजेशन रिलेटेड, इंटेस्टिनल रिलेटेड हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए ये क्रिया बहुत 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 इम्पोर्टेंट। ओके, पीपल विथ हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज एंड जनरली डेबिलिटी मस्ट अवॉइड दिस प्रैक्टिस। ओके, डेबिलिटी मतलब थकान, या जो पर्सन वीक है, जो पर्सन ऑलरेडी वीक है, ऐसा लोगों ने वो उसको नहीं करना है, बहुत जो वीक पर्सन है। फिर हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज वालों ने अवॉइड करना है, बट अंडर सुपरविजन यू कैन टेक। इफ हार्ट डिजीज इज देयर बट दैट पर्सन इज हेल्दी, जिसका एंजियोप्लास्टी हो चुका है और सालों साल हो गए और वो हेल्दी है बाय हार्ट, ऐसा आप उसको अंडर सुपरविजन दे सकते हैं। बट आसना का जो काउंट्स है, 10 काउंट्स अगर हम ताड़ासन कर रहे हैं तो उनको सिर्फ 5 काउंट दो, कम राउंड्स दो, एंड 8 ग्लासेस के बजाय 4 ग्लासेस, 6 कम दो ग्लासेस टू ड्रिंक वाटर आपको कब देना है। अब इसमें भी सलाइन वाटर ही यूज करना है, लूक वार्म सलाइन वाटर ही हमें यूज करना है। ओके, got the practices kriya, so we have completed the kriya section today. Now from tomorrow if you want we can start practical of kriyas। तो कल आप लोग करेंगे वमन, करेंगे सब लोग वमन। वमन के लिए आपको पानी तैयार रखना है, मैं ग्रुप पे इंस्ट्रक्शंस भेजूंगी आपको कि आपको किस प्रकार पानी तैयार करके रखना है, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं होती है उससे, आप दिन अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू आर वर्किंग ऑल्सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, रिलैक्सेशन क्योंकि हम करेंगे उसके बाद, ठीक है। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस अभी तक? नाउ टुडे रिवाइज ऑल द क्रियास फ्रॉम फर्स्ट टिल एंड, देन वी विल स्टार्ट टुमारो। प्रैक्टिकल हम कल से शुरू करेंगे। Okay, shall we stop the session? सब लोग इतने चुप बैठे हैं आज, उद्याच्या प्रॅक्टिकलचं टेन्शन आहे। अरे सोपी आहे, काय नाही, उलटीच करायची। उल्टी इसमें वॉमिटिंग होता है मिस्टर कुमार, वमन धोती में। आप वमन धोती के थ्योरी के वक्त थे क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी, बट ठीक है, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस हमारे ग्रुप पे भेजूंगी कि पानी कैसे तैयार रखना है, और कल हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे उसका, ठीक है। रेडी है ना सब लोग? यस, हमें इंटरनल प्यूरिफिकेशन के लिए करना ही होगा। जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तो हम सिखा पाएंगे, राइट। So we will stop the practice, stop the session today. Hands in Namaskar Mudra. We will chant a Shanti mantra. Sarve bhavantu sukhinah. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Take your hands back. Inhale, go back. Exhale, bend forward. Surrender to Almighty. Slowly come up. Rub your palms on each other. Place your palms on your eyes. Move your palms.